मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क फ्यूम सब कुछ 32 अनस्टेबल पार्टिकल। आपका चैप्टर ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट था, लेकिन आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट है। तो पहले मैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता रहा हूँ, तब उसके बाद मैं शुरू होता हूँ कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस को पहले मैं डिफाइन करता हूँ, ओरली कर रहा हूँ क्योंकि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसको क्या लिखना है, खाली बस पॉइंट इसका हेडिंग लिख रहा हूँ। सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, इसके बाद है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट। सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होता है? Those which have same definite shape, size and volume. Those substances which have definite shape, size and volume is called solids or solid state. Liquid क्या होता है? Those substances which have definite volume but indefinite shape. लिक्विड को किसी बर्तन में डालो, जिस बर्तन उसके शेप को एडॉप्ट कर लेगा, तो इसका शेप क्या होता है? डिफरेंट नहीं होता है। सॉलिड का होता है वॉल्यूम एंड शेप दोनों डिफरेंट हैं सॉलिड के। लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफरेंट है, लेकिन शेप हमेशा चेंजेबल होता है। वहीं पर गैसेस स्टेट में आते हैं। गैसेस स्टेट में क्या होता है? वो गैसेस स्टेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसके जो वॉल्यूम और शेप साइज दोनों ये इनडिफरेंट होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। इट मीन्स in gaseous state, the shape, size and volume of the gases are uncertain or indifferent. It means these are uncertain or indifferent in gaseous state. तीनों स्टेट के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन और भी स्टेट तीन और हैं। जैसे 6 हमने बताया फंडामेंटल पार्ट के, तो 3 स्टेट और हैं, हम आगे बताएंगे, लेकिन फिर आज उसका थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूँ। चौथा स्टेट का नाम है कोलाइडल स्टेट। 5वां स्टेट का नाम है प्लाज्मा स्टेट, जो किसी स्टार्स वगैरह में ये उसके कोर में क्रियाएं चलती रहती हैं प्लाज्मा स्टेट की। माने हर चीज़ें स्टार्स में प्लाज्मा स्टेट में मिलेगा। जो बिजली आकाश से बिजली चमकती वो भी प्लाज्मा स्टेट में होता है। नंबर 6 क्या है? वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर, ये छठा स्टेट है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ये एक्ट होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं जिक्र आगे इसके बारे में डीपली बताऊंगा। तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें डिफरेंशिएट क्या है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तब मैं काइंड्स ऑफ सॉलिड से शुरू होता हूँ। सॉलिड्स आर दोज व्हिच हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, नंबर फर्स्ट पॉइंट। व्हाइल लिक्विड्स आर दोज which volume is certain or different but shape is changeable. Gases are those which shape, size and volume all are changeable continuously. Number 2, the force of attraction between the solid molecules are greater than liquid molecule. The force of attraction in between liquid molecules is greater than gaseous molecule, while the force of attraction in gaseous molecule is negligible. Number 3 point, all solid molecules show the vibratory motion, while all liquid molecules also move their boundary, and gaseous molecules show the irregular motion or Brownian motion or random haphazard motion, अनियमित गति करते हैं। Number 4 point is what? Number 4 point is about the solid, liquid and gases. Its differences is what? The force of attraction in between solid molecules is stronger than liquid molecules. The force of attraction in liquid molecule is stronger than gaseous molecule, and gaseous molecule has very less or negligible force of attraction. Hence, it is said to be all gases are not said to be real, not said to be ideal gases, but all gases are said to be real gases. If any gas who have no force of attraction in between their molecules,
hence it is said to be perfect gas or ideal gas. But it is impossible in nature. All gases are perfect or ideal, but these are said to be what? Real gases, because it has contained negligible force of attraction between their molecules. Next, solid molecules have the less kinetic energy, while liquid molecules are greater than solid molecules. The gaseous molecules have the extremely high kinetic energy than solid and liquid molecules. The density of solid is greater than liquid molecule. The density of liquid molecule also greater than the gaseous molecules, and the density of gaseous molecules are very less. It are 6 or 7 points the difference between solid state, liquid state and gaseous state. बट मैं आपको आगे अब शुरू करूंगा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और व्हाट? The types of solids, there are mainly two types of solid. There are mainly two types of solids. Number first is what? Number first type is said to be, it is said to be crystalline solid. It is said to be what? Crystalline solids. And number second, it is said to be what? It is said to be amorphous solid. Or it is said to be microcrystalline solid. Amorphous solid is said to be what? Amorphous solid or microcrystalline solid. Microcrystalline solids, or it is said to be pseudo solid. इसके 3 नाम हैं. तो मैं सबसे पहले मैं आपको जिक्र करूंगा व्हाट. सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? इट मीन्स राइट हियर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ crystalline solids. What are its characteristic property? इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो क्या है? नंबर फर्स्ट, all crystalline solids are regularly arranged first point. Number second, all crystalline solids have content periodicity. ये रेगुलरली अरेंज होते हैं सिस्टमेटिक वे में और इनमें पीरियडिसिटी पाया जाता है, एक आवर्तकता पाया जाता है, एक निश्चित सीक्वेंस में इनमें चेंजेस होते हैं, एक निश्चित ऑर्डर में चेंजेस होते हैं. इट मीन्स ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव content periodicity. It contain the periodicity. Periodicity होती है और रेगुलरिटी भी इसमें पाई जाती है. और क्या होता है इसमें विशेषता? इसमें जो तीसरी विशेषता है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
So the short melting point. All crystalline solids have short melting point. शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट्स को हम MP भी कहते हैं शॉर्ट में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी शॉर्प होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट इनके होते ही हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और क्या इनमें विशेषता है? इट शो द एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। It shows the anisotropic properties. इनमें एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है शो करते हैं। टू एक्सेप्ट क्यूबिक सॉलिड को छोड़कर उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देती है। टू एक्सेप्ट क्यूबिक सॉलिड्स। नंबर 5, all crystalline solids show the property of refractive index, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस सबको ये शो करते हैं, प्रेषित करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में उसको प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। Number 6 point, all crystalline solids have a certain or different geometrical structure. Have a certain or different geometrical structure. It shows the certain or different geometrical structure. It means all solids show the certain geometrical structure. इनकी ज्यामितीय जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग सॉलिड के लिए अलग डिफरेंट होती है। कोई क्यूबिकल होगा, कोई हेक्सागोनल, कोई पेंटागोनल, कोई टेट्रागोनल, कोई रोम्बिक, अलग अलग तरह के इनका स्ट्रक्चर होता है। इट इज सेड टू बी ज्यामितिकल स्ट्रक्चर। नंबर 7 पॉइंट इज व्हाट? all crystalline solids form a certain crystal lattice. It forms the certain crystal lattice in this way. सर्टेन क्रिस्टल लैटिस को ये फॉर्म करते हैं। कितने? जो सभी के सभी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। नंबर 8, it also shows ब्रेविस लैटिस, ये ब्रेविस लैटिस को भी एक्सप्रेस करते हैं, इसको शो करते हैं। नंबर 9, some crystalline solids show some crystalline solids show कौन कौन से स्ट्रक्चर शो करते हैं? ये इसमें जैसे सिंपल यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, ये शो करते हैं। इट शो द सिंपल यूनिट सेल, और साथ ही साथ और क्या शो करते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अलावा और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, 4 स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लेकिन अगर क्यूबिकल सॉलिड्स है, सम क्रिस्टलाइन क्यूबिकल सॉलिड, some crystalline cubical solids show the, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर को शो करेंगे? सब कुछ वही रहेगा, बस उसमें क्यूबिक लग जाएगा और कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे सिंपल, ये क्या होगा, इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हम इसका कलर पेन का, ताकि आराम से दिखाई देगा। सिंपल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसके बाद है बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शो करते हैं। इसके अलावा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को भी शो करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये क्यूबिकल सॉलिड के बारे में था, और ये नॉर्मल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनके बारे में। इस तरह से हमने 10 पॉइंट, किताब में आपका मुश्किल से 3-4 पॉइंट दिए होंगे, लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट हमने बताया। इस तरह से आपको जानकारी हो। अब इसके बारे में हमें आपको क्या बताना है? इसके बारे में बताना है इसका एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा इसका है क्या। यहीं पे एग्जाम्पल भी बता देता हूँ ताकि ये पूरा टॉपिक एक साथ फिनिश हो जाए।
एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, इसके एग्जाम्पल में आइस आएगा। आइस जो वर्ब जिसको कहते हैं, आइस। आइस के अलावा और क्या आएगा, जैसे सोडियम मेटल है वो भी आएगा, जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड वो भी आएगा, NaCl, KCl, ये सब आएंगे इसमें जो सॉल्ट है। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें, जो मेटल्स है, जैसे मेटल्स में कौन कौन मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, माने Au मीन्स गोल्ड, Ag मीन्स सिल्वर, Cu मीन्स कॉपर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और भी क्या है इसमें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अलावा और भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें डायमंड, ग्रेफाइट, सिरेमिक्स, ये सब भी आते हैं। क्या आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड सिरेमिक्स। एंड सिरेमिक्स एक्सेट्रा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल बताए हैं बहुत सारे, कुछ हमने आपको याद करने के लिए बताया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको इरेज कर सकें। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमने बता दी इसकी प्रॉपर्टी। अब हम आपको बताएंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी था, इसका डिफिनेशन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो भी जान लीजिए। शुरू में बताना था लेकिन छूट गया, प्रॉपर्टी को हम आ गए। बस 2 लाइन क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दो सॉलिड्स which show the geometrical structure and arranged in a definite fashion and arranged in a definite fashion, arranged in a different fashion and form a certain crystal lattice. A certain crystal lattice is called crystalline solids. Is called crystalline solids. ये crystalline solids कहते हैं। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल मैं वहाँ नीचे लिखा था, फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसा भी हमने बताया था सेम वही रिपीट कर रहा हूँ लगभग। आइस है, आइस के बाद और क्या है, आइस आने बाद पर सॉल्ट है, NaCl, KCl, MgCl2। इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड,
कॉपर, ये मेटल्स हो गए, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। इसके अलावा डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिरेमिक, जो भी हमने बताया था अभी डिफिनेशन के साथ हमने लिख दिया ताकि इसके साथ आपको याद रहे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। पहले मैं एमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन करूंगा, तब उसका प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसमें डिफिनेशन छूट गया था, तो हम बताएंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स ये क्या है, इसको जानिए आप थोड़ा। एमॉर्फस सॉलिड्स और दोज सॉलिड्स, amorphous solids or those solids which are microcrystalline solids and pseudo solids have property of super cold liquid, property of super cold liquid, property of super cold liquids is called amorphous solid. amorphous solids, अब amorphous solids है। एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स क्या है वो भी आप देख लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टी बताते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है एमॉर्फस सॉलिड का, इसका एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक और उसके बाद मेटालिक ग्लास, टॉर भी कर सकते हैं, $2, फिर मेटालिक ग्लास भी कर सकते हैं। मेटालिक ग्लास जो किससे बना होता है, मेटलॉइड ओर्स से बना होता है। ओर्स बने आयस, मेटलॉइड ओर्स जो मेटालिक ग्लास होते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या है, ये जो भी सेमी सॉलिड्स हैं एसेट्रा लिख सकते हैं, तो फिर दूसरे लाइन में लिखना पड़ेगा। ऐसे बता रहा हूँ, हॉनी है, टॉर है जो गड़ा होता है देखने में सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड होते हैं। दही जमा हुआ हाथ डालें घुस जाएगा, दलदल है हाथ डालें उसमें घुस जाएगा। तो देखने में तो सॉलिड लगते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं, ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, ये फॉल्स सॉलिड होते हैं, कहने के लिए सॉलिड। अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ये मैं बता दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्या होता है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं। नंबर फर्स्ट,
all amorphous solids, all amorphous solids are randomly arranged. ये रैंडमली अनियमित रूप से अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। इसके बाद और क्या है? These solids have not, these solids have not sharp melting point. इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एक बार समझ लिया कि क्रिस्टलाइन के जस्ट अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प नहीं होते। और नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और क्या विशेषता एमॉर्फस सॉलिड के बारे में? ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड या स्यूडो सॉलिड कहे जाते हैं। These solids are known as microcrystalline solid, microcrystalline solids और pseudo solid, pseudo solid भी इनको हम बोलते हैं। These solids have the property of, these solids have the property of super cold liquid। जैसे ग्लास वगैरह बनते हैं तो ग्लास को भी सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है, वो भी एक तरह से सेमी सॉलिड्स होते हैं, तो उसी कैटेगरी में एमॉर्फस सॉलिड आते हैं। तो these solids have the property of super cold liquid, super cold liquid, it has shown this property। ऊपर का था माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड्स या स्यूडो सॉलिड, ये सुपर कोल्ड लिक्विड को शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट, और इसमें क्या है? ये सुपर कोल्ड लिक्विड को शो करते हैं और साथ ही साथ इनमें और क्या विशेषता होती है? इनमें जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, माने ये उसको शो नहीं करते। These solids do not show the property of refractive index, thermal conductivity, and electrical conductivity। These solids do not show the property of refractive index, thermal conductivity and electrical conductivity। इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। कौन कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इसे इंडिपेंडेंट होते, स्वतंत्र होते हैं। ये सॉलिड कैसे होते हैं? इनको अगर गर्म किया था किसी भी टेम्परेचर पर तो ये शो द फ्लूइडिटी, यानी ये फ्लो कर रहे थे मोल्टेन में, एंड बिगेन टू फ्लो। On heating it becomes soft, on heating it becomes soft
and began to flow. It means after heating it shows after heating it show the property of fluidity. ये फ्लूडिटी के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नंबर 7, these are नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शन होते हैं। These are नॉन डायरेक्शनल सॉलिड्स, ये नॉन डायरेक्शन का नहीं, इससे भी कम चले, ये नॉन डायरेक्शन होते हैं। दूसरी बात और क्या होती है, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं नॉन डायरेक्शन होने के साथ साथ और क्या शो करते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स और नॉट एक्सट्रीमली हाई, बहुत हाई नहीं होता। और नंबर 9 में क्या है, इट डज नॉट शो द सर्टेन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इनका कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। इट डू नॉट शो द सर्टेन और डिफरेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, कई चीज़ें, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, को नहीं शो करते एमॉर्फस। इट डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। हाँ, एक पॉइंट और 10th पॉइंट में यहीं पे लिख दे रहा हूँ नीचे, यहाँ साइड में, अब समझ लीजिएगा 10th है, नंबर 10th पॉइंट। It do not show, yeah, these solids do not show, these solids do not show the property of the property and structure of crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस को नहीं शो करते हैं, न तो ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई नहीं होता है, और नॉट एक्सट्रीमली हाई। तो 10 पॉइंट हमने प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी बताया, और 10 पॉइंट हमने आपको बता दिया एमॉर्फस सॉलिड में।
तो दोनों सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने फिनिश कर दी बहुत ही अच्छी तरह से। आपके बुक में 2, 3 या 4 पॉइंट मैक्सिमम दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिख, मैंने आपको 10 पॉइंट इतना लिख देंगे तो फिर कोई भी कहीं से रेड पेन नहीं लिया, कोई आपके एक भी मार्क्स माइनस नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। अब हम बस 2 हेडिंग छोटे छोटे उसको बता लेते हैं तो आज का वीडियो फिनिश होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि हम इसको अरेंज कर दें। स्क्रीनशॉट आप ले लें। हाँ, तो मैं आऊँगा आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा। वो टॉपिक क्या है? आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, 2 टॉपिक है। पहले मैं आइसोमॉर्फिज्म को बताऊँगा ये होता क्या है, तब इसके बाद दोनों बता के फिर आज का वीडियो यहीं पर रखूँगा, फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगा अगले वीडियो में। ये है आइसोमॉर्फिज्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है ये क्या होता है? when 2 or more than 2, when 2 or more than 2 substances, when 2 or more than 2 substances having similar और सेम, जो भी लिखें, having same crystal structure, having same crystal structure is called isomorphous solids. It's called isomorphous solids, and this phenomenon is known as isomorphism. Known as isomorphism. अब इसके एग्जाम्पल्स आप देख लें। एग्जाम्पल्स क्या है आइसोमॉर्फिज्म का? एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट, पहला जो इसका एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फिज्म का, सोडियम फ्लोराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम फ्लोराइड, NaFN
मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और पेयर ऑफ isomorphous substance or pair of isomorphous substance के पेयर होते हैं और पेयर ऑफ isomorphous substance it shows the same atomic ratio of 1:1. Same atomic ratio of 1:1. सेकेंड एग्जाम्पल इसका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट are the pair of isomorphous substance it shows the same atomic ratio of same atomic ratio of 1:1:3 सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 है 1:1:3 या फिर 1:1 और 3 1:1:3 इसमें 2 ही है 1:2 1:1 1:1 हो गया ये भी 1:2 है तो 1:1 इट इज सेड टू बी एटॉमिक रेशियो। तो इस तरह से आइसोमॉर्फिन के हमने एग्जांपल आपको बता दिया। आज का लास्ट हेडिंग आपका है आज के वीडियो का वो है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर कल मैं आपको काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सॉलिड बताऊंगा। 4 तरह के होते हैं। आयनिक सॉलिड होता है, मेटेलिक सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर सॉलिड के अलावा जो इनमें मेटेलिक सॉलिड होता है। आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड ये 4 तरह के होते हैं। पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट आर पॉलीमॉर्फिज्म? इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। When one substance having 2 or more than 2 crystal structure or forms having 2 or more than 2 forms or crystal structure are called polymorphous substances
polymorphous substances, and this phenomenon is known as polymorphism. It is said to be what? Polymorphism. यानी एक ही सब्सटेंस अलग अलग रूपों को व्यक्त करते हैं, एक ही सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म में होंगे, अलग अलग रूप में होंगे पॉलीमॉर्फिज्म में, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस एक ही रूप में आपको दिखाई देंगे सिमिलर, भले ही दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं तो आइसोमॉर्फिज्म होता है। इट इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म. दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म. अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा. इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल में आपको नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा. जैसे कैल्साइट है और एरागोनाइट है. इट मीन्स कैल्साइट एंड एरागोनाइट calcite and aragonite show the two polymorphic forms of calcium carbonate. CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट है नंबर सेकेंड एग्जाम्पल. नंबर सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है? सिलिका का है. इट मीन्स कैसे फॉर्म होता है ये, इनमें क्रिस्टो बैलाइट एक होता है. क्या होता है? क्रिस्टो बैलाइट. तो क्रिस्टो बैलाइट और कुछ क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं. ये तीनों मिलाकर तीन प्रॉपर्टी को शो करते हैं. इट मीन्स अल्फा क्वार्ट्ज कमा बीटा क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टो बैलाइट show the three polymorphic form through the three polymorphic forms of सिलिका. ये सिलिका के थ्री पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को एक्सप्रेस करता है ऑफ सिलिका. ये कैल्शियम कार्बोनेट को और ये सिलिका. कैल्शियम कार्बोनेट के दो फॉर्म है, कैल्साइट, एरागोनाइट. इसका अल्फा क्वार्ट, बीटा क्वार्ट एंड क्रिस्टोबैलाइट, ये तीन होते हैं इसके फॉर्म. तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में. अभी एक इसके बाद जो नेक्स्ट है, थोड़ा सा दो लाइन का उसको बता देता हूँ ताकि ये पूरा फिनिश हो जाए. अब ये एलोट्रॉफी. एलोट्रॉफी क्या होता है?
एलोट्रॉपी, डिफिनेशन इसका क्या है? Those substances which have same chemical composition, same chemical composition but different physical states, are called allotropes, and this property is known as allotropy. इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनके केमिकल कंपोजिशन सेम होते हैं। अगर कोई कार्बन है तो सब चीज़ उसका कार्बन से बना होगा, यानी जो भी होगा एक सेम रहेगा, सिमिलर। तो ऐसे सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन सेम हो लेकिन फिजिकल स्टेट अलग है। जैसे कार्बन के आपका सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जानते हैं, डायमंड ग्रेफाइट। डायमंड चमकता है, देखने में कैसा ग्रेफाइट कलर रहता है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का। फिजिकल स्टेट अलग अलग है लेकिन दोनों कार्बन के ही एक रूप होते हैं, कार्बन ही होते हैं दोनों तरह से। तो जैसे अर्थ के अंदर जो मेंटल लेयर है वहाँ ग्रेफाइट 3600 डिग्री सेल्सियस पर वो डायमंड में चेंज होता है, या डायमंड अगर है तो ग्रेफाइट में भी कन्वर्ट होता रहता है तो दोनों कार्बन है लेकिन दोनों चेंज होते रहते हैं। तो ये क्रिया हमेशा लगातार कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। तो इस तरह से एलोट्रॉपी कहलाता है। अब ये इसको मैं बताऊंगा कौन कौन से इसमें है, इसके काइंड्स, एग्जाम्पल्स के तौर पर। जैसे एलोट्रॉप्स हम बताएंगे कौन कौन एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एलोट्रॉप्स को एक जो होता है क्रिस्टलाइन होता है और दूसरा एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म एक होता है और दूसरा क्या होता है, एमॉर्फस फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के भी 3 इसके एग्जाम्पल हैं, 3 रूप हैं। जैसे आपका कौन कौन होगा तीनों में, पहला आएगा डायमंड, दूसरा आएगा ग्रेफाइट, तीसरा आएगा बकमिंस्टर फ्यूलरेंस। इसका खोज बकमिंस्टर ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम बकमिंस्टर फ्यूलरेंस रखा गया। बकमिंस्टर फ्यूलरेन, ये बकमिंस्टर फ्यूलरेन है। यह इसी का दूसरा जो नाम है, इसको हम बकबॉल भी बोलते हैं, BUCK
BALL बकमिस्टर फ्यूलरेंस। ये कार्बन का नया एलोट्रॉप से तीसरा एलोट्रॉप से डायमंड ग्रेफाइट के बाद इट इज सेड टू बी व्हाट बकमिस्टर फ्यूलरेंस और बक बॉल। इट मीन 3 डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्यूलरेंस, ये थ्री फॉर्म्स है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके। और एमार्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के 3 फॉर्म और एमार्फस सॉलिड में इसके भी 3 फॉर्म्स हैं। एमार्फस के 3 फॉर्म कौन कौन है इसको आप जानिए जरा। पहला है कोल मैंने कोयला, दूसरा है चारकोल लकड़ी का कोयला, और तीसरा है कार्बन ब्लैक और लैम्प ब्लैक, जो भी कहिए सेम लगभग मिलते जुलते। कार्बन नंबर 3 में है कार्बन ब्लैक, और इट इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक और लैम्प ब्लैक, ये 3 है। डायमंड के बारे में आपको मालूम है, बस अब फिनिश होने वाला है आज का टॉपिक हमारा। आज की वीडियो में एलोट्रॉप 2 तरह के क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड होते हैं। डायमंड जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को शो करता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को शो करता है, बकमिस्टर फ्यूलरेंस कार्बन 60 कार्बन 70 कार्बन 90, ये सब जिसके द्वारा नैनो टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड है। इसी के द्वारा सुपर कंडक्टर्स भी बनाए जाते हैं बकमिस्टर के द्वारा। C60 से शुरू होते हैं, तो ये बकमिस्टर फ्यूलरेंस। कोल यानी कोयला जानते हैं, कोल माइन से निकाला जाता है, जो फॉसिल फ्यूल है, जो करोड़ों साल पहले जो हमारे पृथ्वी पर फार्म के डेंस फॉरेस्ट थे दब गए, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर दब कर उनका कार्बोनेशन हुआ, कार्बोनेशन के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गए, तो इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। चारकोल लकड़ी का कोयला, लकड़ी का यानी वुड का जो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में उसको जलाते हैं तो क्या बनता है, ये चारकोल बनता है, कोल टार बनता है, एंड पायरोलिग्नियस एसिड या अमोनिया लिक्विड इसको बोलते हैं, वो बनता है। साथ ही साथ इसे कोल गैस भी निकलती है जो फ्यूल में या लाइटिंग पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता था पहले, अब तो LPG और CNG आ गया। और कार्बन ब्लैक जो महिलाएं आँख में काजल लगाती हैं, ये कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक होता है। ये सब इसके पार्ट है, इसके रूप है, ठीक है। तो इस तरह से ये आज मैं अपना वीडियो यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। हमारे तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीवन। ओके, एंड आई शैल मीट यू in next video for the next point. It means the different types of geometrical solids or geometrical crystals. Okay, thank you.